Today we will talk about ladies, girls, women, and females. So, like Like a lot of people say to my dad کہ لو اب یہ لڑکی ہے لڑکوں کے ساتھ پڑھے گی لو اب یہ یہاں سے وہاں کیسے جا کرے گی لو اب تمہیں اس پر زیادہ دھیان دینا پڑے گا بلا 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 اینڈ دس اینڈ مائی ڈیڈ واز لائک کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اس بات پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ او مائی گاڈ دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی. جب انہوں نے پراپرٹی مانگی انہوں نے پراپرٹی کا حصہ دیا اور انہوں نے خود ہی رشتے ختم کر دیا بٹ آج جدی کہ بھائی اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ کہا وہ کہا اس نے بیٹھنے نہیں دیا اس نے کچھ ورلڈ Assalamu alaikum and good morning. Today is 24th of Ramadan 2026. So Ramadan al Mubarak going too fast. Literally میں it's happening اس بار تو رمضان واقعی میں بہت جلدی چلا گیا بہت جلدی گزر رہا ہے. ہاں یہ لاسٹ کے جو 10 days ہیں you can say کہ it's not looking too fast but جو پہلے 30 روزے تھے نا وہ یوں گزرے ہیں literally میں نہیں پتا چلا. So today we will talk about ladies, girls, women, and females. So, like how we treat females in this society, in this country, which you call Pakistan. So we started from home. کہ like گھر میں کس طرح سے جو ہے وہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے the day they born till the day they die. Okay, so let's get started. First of all, جس نے channel کو subscribe نہیں کیا please do subscribe my channel because it makes me so happy. So my happiness ویسے تو میری خوشی کا کسی کو خیال نہیں ہے اگر آپ کو میری خوشی کا خیال ہے تو please subscribe my channel. So let's get to the point. So guys, I will talk on reality checks because جو چیز میں نے فیس کی ہیں جو کچھ میں نے اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھے ہیں it's happening to the female gender, so I will share those things. Okay? First of all, we think کہ جو ایک میرڈ بیٹی ہے ہماری جو شادی شدہ ہے وہ اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہے دے لک دیئر کہ وہ خوش ہے اور وہ اچھی ہے اپنے گھر میں. سیم پوائنٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر آتی ہے اس کو آنا پڑتا ہے کسی کمی کیسے بھی اینڈ وہ آلریڈی آنے سے پہلے اپنے ہسبینڈ سے ڈیسائڈ کر چکی تھی کہ ٹھیک ہے ہم آئیں گے ایک دن رہیں گے پھر ہم واپس چلے جائیں گے. تو نیکسٹ ڈے دے گیٹ ریڈی ٹو گو بیک اینڈ اور وہ پھر جو ہے وہ کسی بھی طرح چلو تھوڑا لیٹ ہوتے ہیں جلدی چلے جاتے ہیں اینڈ یو گیس لائک اب ہماری بیٹی آئی اور ایک دن اس کو رہنے دیا اس کا ہسبینڈ کو ایسی ہوئی تھی یہ وہ بلا بلا what you want dude what you want ہاں یا تو اس کو اپنے سسرال میں خوش رہنے دو ٹھیک ہے وہ جتنا ٹائم آئی جتنا ٹائم رہی اٹس گڈ کہ اس کا ہسبینڈ ازم لے کے آیا وہ رہا بھی اس کے کہنے پہ اور آپ سے مل بھی لیا تو اٹس گڈ کہ وہ جا رہی ہے اپنی مرضی سے جا رہی ہے اس کو کوئی فورس نہیں کیا گیا بٹ یو آر ججنگ کہ بھائی اس کے ہسبینڈ نے اس کو یہ کہا وہ کہا اس نے بیٹھنے نہیں دیا اس نے کچھ what is this behavior guys what is this is not the thing you have to do. Okay, the second thing is about the rights, women rights. ٹھیک ہے the most important right کہ اسلام نے اجازت دی ہے اسلام اینڈ law allow you کہ آپ کو جو پراپرٹی میں آپ کا جو پرسنٹیج ہے جو آپ کے بھائیوں کی یا آپ کے پیرنٹس کی سوری پراپرٹی ہے پیرنٹس کی اس میں آپ کا جو ہے وہ پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے تھرڈ پارٹی سے جیسے بھی ہے if you want to get that right or that part or that thing تو آپ لے سکتے ہو کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم نہیں دیں گے یا وہ اٹس اے لا اٹس اسلامک لا آلسو اینڈ اٹس پولیٹیکل کیا کہتے ہیں ہاں قانون لا بھی ہے ٹھیک ہے کورٹ لا. تو اب یہاں سے آگے کیا کہتے ہیں کہ اب ایک پوائنٹ پہ اگر ایک فیمیل اپنے بھائی سے وہ بول دے کہ بھائی میرے کو تو یہ چاہیے میرا حصہ
हमारी सोसाइटी ऐसे है कि हम कहेंगे अपनी बेटियों को कि वाई यू आर आस्किंग, तुम क्यों मांग रही हो, वो भाई है तुम्हारा, तुम उसे दे सकते हो, तुम उसे दे दो अपना हिस्सा, तुम्हें क्यों चाहिए, वो भाई है तुम्हारा, तुम आओगे तो इसी घर में रहोगी, फिर अगर तुम हिस्सा ले लोगी तुम्हारा क्या होगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. We treat them like that. That means that female or that girl has no right in this house. और लिटरली में अगर हम फीमेल्स में अपने भाइयों को बेटी देती है ना, तो हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि बाद में फिर औकात ही नहीं रहती. वैसे तो औकात दो ही पॉइंट्स पे ही नहीं रहती. नंबर वन कि अगर एक लड़की कह रही है कि भाई मेरे को तो अपने भाइयों की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, उस पे भी वो बुरी है क्योंकि वो अपने भाइयों से हिस्सा मांग रही है. हालांकि हिस्सा तो उसका अपना है, वो मांग सकते हैं. इस्लाम ने इजाज़त दी है, उसको कानून ने इजाज़त दी है, कुरान पाक में इजाज़त है, लेकिन फिर भी जब वो मांगती है तो वो बुरी है क्योंकि वो भाइयों के हिस्से में से हिस्सा मांग रही है ना, कि वो हिस्सा तो उसका अपना है. सेकेंड थिंग, अगर वो नहीं मांगती तो शादी के बाद जब भाइयों की शादी हो जाती है, जो भी अब कहीं बहन आती है तो उसके साथ भी कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता. एज एन मैन उसको बहुत ही बुरा समझा जाता है लिटरली में. लाइक मैक्सिमम, मैं नॉट नॉट आई एम सेइंग कि भाई हर कोई, बट मैक्सिमम परसेंटेज, मैक्सिमम जो सोसाइटी हमारी है ऐसी है. ठीक है, वो आते हैं तो वो जस्ट लाइक लो आ गई, ये हो गया, अब घर में और लड़ाइयाँ पड़ेंगी, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, कहीं पे जो है वो नंद अच्छी है तो लाइक भाभियाँ अच्छी नहीं है, कहीं भाभियाँ अच्छी हैं नंद अच्छी नहीं है, और बहुत कम लोग हैं जहाँ पे दोनों जो है वो मैच कर जाते हैं. ठीक है, बस गलत लड़की है. ठीक है, तो उसने अगर मांग लिया हिस्सा तो भी वो बुरी है, और अगर नहीं मांगा और उसने छोड़ दिया तो जब वो उस घर में आएगी तो हम कह देंगे भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, फिर वो घर हमारा नहीं रहता. ठीक है. Okay, there is a story. I'm living in a village that is near to city. I'm not telling them where I am from. शायद टाइम आएगा तो वो भी बताऊंगी. अच्छा, तो अब यहाँ भी है कि हमारे पास ही कुछ लोग, एक फैमिली रहती है, काफ़ी माशाल्लाह से वो ज़मींदार हैवी किस्म के. अब उसकी जो बहनें थी शादी के बाद काफ़ी टाइम रही, मतलब शादी के बाद उन्होंने जो है ना अपने भाइयों से प्रॉपर्टी के बारे में बात की कि भाई हमें इसका चाहिए. तो अब भाइयों ने क्या किया, भाइयों ने उनसे सारे रिश्ते वगैरह तोड़ दिए. ठीक है, एंड मेरी सिस्टर बता रही थी कि अब जब मैं एक दफ़ा गई उस साइड पे कुछ काम था तो मैंने उनसे पूछा कि भाई वो मिलती हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो छोड़ दिया, उन्होंने हमसे हिस्सा ले लिया, बस हमसे तो ख़त्म कर दिया, बहनों ने आपस में मिल के बातें करके हमसे हिस्सा ले लिया. ये इसमें कि उन्होंने कहा कि बहनों ने गलत किया हमारे साथ कि हमसे हिस्सा ले लिया. Guys, you have a lot of property and आप जो है जो उनका हिस्सा है वो देते हुए भी उनको गलत कह रहे हो. डजंट मीन कि वो गलत है, आप गलत है. इस्लाम ने इजाज़त जिस चीज़ की दी है आप उस पर कैसे बात कर सकते हो कि भाई इन्होंने हमारे साथ रिश्ते ख़त्म. जब उन्होंने प्रॉपर्टी मांगी, इन्होंने प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया और इन्होंने खुद ही रिश्ते ख़त्म कर दिए बहन के साथ. इट मीन कि आप प्रॉपर्टी लो या ना लो, आपके साथ रिश्ते भाइयों से ख़त्म हो ही जाते हैं. आई एम लिटरली मैं टालेंगी कि जो बहनें होती हैं ना वो फिर भी भाई के बारे में बुरा नहीं सोचते. लिटरली ना, भाई जितना मर्जी बुरा कर लें, ठीक है, भाई एक पॉइंट तो बहुत अच्छे भी होते हैं. समटाइम सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं कि वो कुछ ना भी करें बुरा तो हो जाता है, हालात ही ऐसे हो जाते हैं. फिर क्या होता है कि मतलब जब बहनें कुछ अपने हक के लिए बात कर लेती हैं तो फिर हम कहते हैं को दो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम बहन भाइयों से ऐसी बात कर रही हो, तुम बहन हो, तुम्हें इनका सोचना चाहिए. वाई भाई बहन ही क्यों सोचे, जस्ट बिकॉज वो बहन, जस्ट बिकॉज वो फीमेल है, जस्ट बिकॉज वो लड़की है, जस्ट बिकॉज वो वुमेन है. हाँ, दिस इज द रीजन कि अगर लड़की अपना हक मांगती है तो भी श्योर, अगर नहीं मांगती तो भी श्योर, उसकी लाइफ तो खराब है.
एंड इस्लाम ने भी इजाज़त दिया, बट हमारे यहाँ सोसाइटी ऐसी है कि जब बात लड़की के बारे में आ रही है तो हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, बात मेल जेंडर की आ रही हो तो हम सोसाइटी को फॉलो करते हैं कि सोसाइटी में मर्द रिस्पॉन्सिबल है, इसने फैमिली चलानी है, इसने तुम लोगों को चलाना है, इसने तुम लोगों को कमा के देना है, ये वो। लेकिन जब लड़की की बात आती है तो लोग भाई अब तुम ऐसे करोगे, इस्लाम में भी इजाज़त नहीं है, तुम्हें पर्दा करना चाहिए, तुम जॉब क्यों करो, तुम बाहर क्यों जा रही हो, पर्दे में रहो, ये करो, घर का काम करो, बच्चे संभालो, जिम्मेदारियां संभालो, जैसे हालांकि वी आर नॉट ऑल्सो फॉलोइंग थ्रू इस्लामिक लॉज। हाँ जी। स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस। तो अब हमें बचपन से ही सिखाई जाती है एक चीज़ कि अब ये चीज़ अगर आपकी है या आपको पसंद है, बट भाई को भी पसंद है, तो हमें उसको देनी है, बिकॉज वो भाई है। फिर चाहे वो छोटा है या बड़ा है, हमें उसको ही देना है, बिकॉज भाई है, सो के दे दो, कोई बात नहीं है, हो जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इट मीन कि हमारे पास जो है वो राइट ऑफ लिविंग ही नहीं है कि हमें अगर कुछ पसंद है बचपन से ही, अगर हमें कोई खिलौना भी पसंद है तो वी कांट बाय, और हम उसे ले नहीं सकते, बिकॉज अगर वही चीज़ जो है वो भाई को पसंद है तो हमें उनको देना पड़ता है। दिस इज़ द जेंडर डिफ्रेंशिएशन जो स्टार्ट से ही हमारे साथ हो जाती है बचपन से, ठीक है। सिंपल, दिस इज़ द रियलिटी, अगर आप एक्सेप्ट करो या ना करो, बट दिस एज द रियलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट ऑफ एजुकेशन। कि अगर हम जो है वो पढ़ना चाहते हैं, हमें तालीम हासिल करनी है, हम अपनी मर्ज़ी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, तो हमारे पास वो राइट भी नहीं है, हम नहीं कर सकते, बिकॉज हम लड़कियां हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती नहीं हैं, लड़कियों को क्या ज़रूरत है पढ़ने की, उन्होंने तो घर पे ही घर ही संभालना, उन्होंने तो चूल्हा ही देखने, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इट मीन हमारे पास राइट ऑफ एजुकेशन भी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे पता क्या होता है, अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बिल्कुल वैसे ट्रीट कर रहे होते हैं जैसे उनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। बट मैं लिटरली में अपनी बात बताती हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं था। हाँ, जो मुझसे सीनियर्स है, जो मतलब मेरी बहनें हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। दे फेस दिस जेंडर डिफ्रेंशिएशन, वो भी मेरे अम्मा अब्बा की तरफ से नहीं, बस सोसाइटी की तरफ से, चाचू मासी फूफो इन सब की तरफ से, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो है वो इस बात पे रोने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड, दूसरी भी बेटी पैदा हुई है। ये हुआ, इट्स हैपन टू अस, ठीक है। जब मेरी बहन पैदा हुई, इट्स हैपनिंग अ लॉट ऑफ थिंग लिटरली में। हाँ, मेरी अगर मेरे कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स ये वीडियो देख लें एंड बात जो है इधर उधर पहुंच जाए एंड दे सेड नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ये तो नहीं था, हम तो खुश थे, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ऐसा कुछ नहीं था। द रियलिटी नोज कि वो मेरी अम्मा को पता थी, मेरे फादर साहब को पता थी, और बस, और कोई नहीं जानता कि क्या हुआ जब मेरी बहन पैदा हुई दूसरे, ठीक है। लिटरली में गाइस मैं बता नहीं सकती, और जब बताना भी नहीं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के हमें जो है ना सबसे पहले तो इसी बात पे ही झटका लग जाता है कि ओ माय गॉड, एक और बेटी पैदा हो गई, अब क्या होगा, अब जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे, इट्स हैपन, ये होता है। अगर हम बात करें ना, वो जो एस्ट्रोलॉजी है, उन्होंने भी यही बात की थी कि लाइक अब हम जो है वो माशाल्लाह से, अब हम 5 बहनें हैं, हमने बहनों ने जो है पूरी फैमिली मतलब अपने घर को सपोर्ट किया, बहनों को सब, भाइयों को, सॉरी, अब्बा जान अम्मा जान सबको सपोर्ट किया, हर चीज़ की, पढ़ा भी, ये भी, बट स्टिल दे सेड कि भाई जब दूसरी तीसरी भी बेटी पैदा हुई थी तो इश्यूज बहुत कुछ हुए थे, बहुत होते हैं, ये हर फैमिली में होते हैं। एक से दूसरी बेटी पैदा हो जाए तो सबको ही मौत दिखाई देती है, जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसका जहेज आप लोगों ने तैयार करना है। हाँ, लिटरली में। ओके, तो अब मेरे बहनों के साथ ये हुआ था कि हाँ, मतलब दे डोंट अलाउ टू स्टडी, उनको नहीं मतलब अलाउ था कि भाई वो पढ़ें या आगे पढ़ें, या फिर स्पेशली इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हमारा जो इंग्लिश मीडियम था वो को एजुकेशन थी, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। जब मेरी बड़ी आपी ने मैट्रिक क्लियर की गवर्नमेंट स्कूल से, तो उनका मूड था कि भाई वो पढ़ें, बट फैमिली डजन अलाउ, डोंट से फैमिली, फैमिली फैमिली फैमिली,
What is this family, हाँ? जो family नहीं भी है उनको भी family ही बोलना पड़ रहा है. Like a lot of people say to my dad कि लो अब ये लड़की है लड़कों के साथ पढ़ेगी, लो अब ये यहाँ से वहाँ कैसे जाया करेगी, लो अब तुम्हें इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, blah 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 and this. And my dad was like कि ठीक है नहीं पढ़ना इसमें. My moms do a lot of things कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं. बट दैट वॉज द पॉइंट जहाँ पे मेरे डैड ने कहा नहीं इसको हमने वहाँ नहीं पढ़ाना. दिस हैपन टू माई मोस्ट एल्डर सिस्टर. देन comes to the second one. She knows कि भाई क्या हालात हैं क्या सिचुएशंस हैं एंड शी said कि बस मेरे को नहीं पढ़ना. बस उसने देख लिए थे हालात इधर उधर के. उसको पता था कि जितनी परमिशन उसको मिल गई उतनी ही परमिशन मुझे भी मिलेगी. सो she never forced to do more education to get more education all these things. And that point was she was too good in singing. उसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी. घर पे हम कभी सिंगिंग करते कभी नात वगैरह का कंपटीशन होता है. शी विंस ऑल द टाइम. बट इस बारे में भी उसने कभी फैमिली में बात नहीं की भाई आई वांट टू डू दिस बिकॉज उस टाइम की बात करें इट वाज अबाउट 1996 और 1992 की बात. तब की बात होगी. तो अब उस टाइम पे मेरी सोसाइटी और मेरी फैमिली कितने ही अपडेटेड होंगी यू नो गाइस. हालांकि इस टाइम पे भी कहीं ना कहीं मेरी फैमिली थोड़ा डाउनग्रेड सोच जाती है बट अब बहुत कम है क्योंकि अब हमारी ज़ुबानें खुल चुकी हैं तो वो कहीं ना चुप कर जाते हैं. ओके. अब फिर भाइयों की बात आई. भाइयों को अलाउ था वो पढ़े. वो कितना ही पढ़े लड़के कितने ही पढ़ जाते हैं. हाँ पढ़ते होंगे लेकिन मेरे भाई नहीं पढ़े. हाँ बट दे फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. उन्होंने सोच लिया था कि भाई हमने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की उठानी है. इवन माई डैड इज स्टिल डूइंग वर्क. वो उनको पता है. वो कहते हैं कि भाई वेले बैठ के जो है वो मैं थक जाता हूँ. तो फिर जो इंसान शुरू से काम कर रहा हो तो उसको आदत नहीं होती वेले बैठने की. तो अब वो अभी भी काम करते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही. जो उनके काम का लिंक है वो करते हैं. तो वो कहते हैं अगर मैं घर पे ही बैठा रहूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा. एंड माई मोम थिंकिंग सेम कि भाई मेरे को काम करना है. मेरी मॉम जो है वो हाउस वाइफ भी थी. वो जॉब भी करती रही हैं. वो मतलब बच्चों को लड़कियों को जो है वो कपड़े सिलाई कढ़ाई हर चीज़ सिखाती. शी नोज़ एवरीथिंग अबाउट दिस. उनको पढ़ने का बहुत शौक था बट मेरे नाना अब्बू ने नहीं अलाउ किया. बट उन्होंने वो ख्वाहिश जो है वो हम पे पूरी करनी चाहिए लेकिन पहले दो बेटियों से तो नहीं हो पाई बिकॉज उन पे तो रेस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा लग गई थी. दे डोंट अलाउ टू यूज़ सेल फोन. इवन उस टाइम पे इतने थे भी नहीं. एक ही फ़ोन था मेरे मामू ने लेके दिया था तब. तो तब तो टीवी भी देखना इतना कोई अलाउ नहीं था. शी फेस अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शन सिंपल. बट जब बात मेरी आई तो माई डैड गेट टू नो कि हाँ भाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट. एजुकेशन के बगैर जो है हम इस दुनिया पे नहीं रह सकते. दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. दैट डजंट मीन कि भाई वो को एजुकेशन है या फिर दूर किसी मुल्क में है या फिर दूसरी सिटी में है या फिर 6 घंटे दूर है ये वो ब्ला ब्ला नहीं. और उस पॉइंट पे ये भी था कि माशाल्लाह से मुझसे बड़े भाई भी थे. एक भाई था दो बहनें थीं एंड दे हैव टू सपोर्ट. और वो मुझे करते थे ठीक है तुमने पढ़ना है तुम पढ़ो. मॉम भी कहती थी पढ़ना है पढ़ो. दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जब मैंने मैट्रिक क्लियर की. और मैंने मैट्रिक भी को एजुकेशन नहीं की. मैं 6 क्लास तक गवर्नमेंट पढ़ी. फिर मैंने कहा नहीं भाई आई एम नॉट गुड इन उर्दू. इवन आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश मच. बट बट मेरे को पता था कि भाई फ्यूचर तो इंग्लिश में ही है चाहे कुछ भी कर लो. सो मैंने कहा भाई मेरे को इंग्लिश मीडियम पढ़ना है. तो बात हुई तो फिर मेरा एडमिशन को एजुकेशन में हो गया. दैट वाज द फर्स्ट विक्ट्री फॉर माय मॉम जिन्होंने जो सोचा था वो कर दिखाया. एंड आई गेट एडमिशन इन दैट स्कूल. फिर मैं पढ़ी. फिर उसके बाद मैंने को एजुकेशन सॉरी कॉलेज का सोचा भाई मेरे को कॉलेज जाना है. तो कॉलेज का सोचा तो उस पर भी मुझे जो है परमिशन मिल गई. आई गॉट एडमिशन इन एपीएस कॉलेज. और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की बात हुई तो मैं वहाँ पे भी एडमिशन मिल गया बड़ी इजीली. इवन मैंने एमडी कैट का टेस्ट भी दिया. तब मेरे डैड मेरे साथ गए इस्लामाबाद.
اینڈ دیٹ واز دا ٹائم کہ جب میرے ڈیڈ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ بھائی ہاں بھی تعلیم اچھی ہے ضروری ہے اور دیٹ ڈزنٹ مین کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے ایجوکیشن از امپورٹنٹ. اوکے تو پھر میں یونیورسٹی پڑھا پھر آئی واز دا فرسٹ چائلڈ آف ہول فیملی جس کو ایجوکیشن الاؤ ہوئی جس کو باہر جانا الاؤ ہوا جس کو جاب کرنا الاؤ ہوا اور جس کو ابراڈ جانا بھی الاؤ. اوکے ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویڈنگ. اب شادی کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. اب شادی کے لیے جو ہے نا ہمیں تو پہلے بتایا تھا کہ بھائی ہم لڑکی ہیں پرایا دان ہے دس از ناٹ آور ہاؤس یہ ہمارا گھر نہیں ہے ہم کو تو گھر چھوڑ کے جانا ہے. ہمیں ہر چیز بولی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے تو شادی کے بعد کرنا وہ کرنا ہے تو شادی کے بعد کرنا یہاں جانا ہے تو شادی کے بعد جانا اتنا پڑھنا ہے تو شادی کے بعد کرنا ٹھیک ہے. اور شادی کے بعد ہسبینڈ پتہ کیا کہتا ہے تم نے اپنے گھر میں نہیں کیا تو یہاں کیوں کرنا ہے تم نے اپنے گھر میں وہاں پہ نہیں گئی تو یہاں کیوں جانا ہے تمہیں وہاں پہ اس چیز کی پرمیشن نہیں ملی تو تمہیں یہاں بھی کیوں کرنی ہے. دس از کالڈ دا ڈائریکٹ ریلیشن شپ اور تھنکنگ. جو سوچ ہماری فیملی ہمارے لیے سوچتی ہے پھر ہسبینڈ بھی وہی سوچتے ہیں کہ بہن تجھے وہاں پہ اس چیز کی پرمیشن نہیں تھی تو سوری میں یہاں پہ بھی تمہیں اس چیز کی پرمیشن نہیں دوں گا. دس ہیپن ٹو اس. اور اس طرح سے ہماری جو شادی کی لائف ہے وہ بھی ختم. یعنی ہم پھر شادی کر کے اس سسرال پہ رہ لیتے ہیں اس گھر کو سنبھالتے ہیں بچوں کو سنبھالتے ہیں ہسبینڈ کی بھی سنتے ہیں سسرال والوں کی بھی سنتے ہیں. وی لیسن اے لاٹ آف تھنگس بٹ ہماری کوئی نہیں سنتا. دین وی گوٹ psychological issues, depression, stress, anxiety and a lot of heavy stressors and a lot of psychological issues. اور پھر psychological issues ہمارے جو ہیں وہ physical issues بن جاتے ہیں لائک ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر اینڈ بہت ساری چیزیں. موسٹ امپورٹنٹ وی ڈونٹ ہیو رائٹ ٹو چوز پرسن فار میرج. ہمیں نہیں بس چوز کرنے کا پرمیشن کیونکہ ہم لڑکی ہیں. بیکاز آئی ایم اے فیمیل بیکاز آئی ایم وومن بیکاز آئی ایم اے گرل بیکاز آئی ایم پلس ٹھیک ہے. تو دس از دا ریزن کہ ہمیں جو ہے وہ فریڈم آف چوائس بھی نہیں ملتی کہ بھائی تمہیں اگر جیسے شادی کرنی ہے کر لو. اوکے کہیں 1% اگر ہمیں الاؤ کر دیا جاتا ہے نا تو چلو ہم کر بھی لیتے ہیں تو بائی لک ہمارے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھائی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں اینڈ آر فیملی جسٹ لائک ہم تو پہلے ہی کہتے تھے نہ کرو یہ تمہاری پسند ہی تھی بلا بلا بلا. بلیم کس پہ ہے ہم پہ. اوکے اگر سیکنڈ بات کریں نا کہ اگر ہم ارینج میرج کر لیتے ہیں اماں ابا کی مرضی سے اماں کے ابا کے ابا کے اماں کی مرضی سے تو پھر ہمارے ساتھ سچویشنز جو ایسی بھی ہو نا پھر وہ ہماری قسمت ہوتا ہے. دس از دا مین تھنگ لائک آر فیملی ٹریٹنگ لائک دس کہ بھائی ہماری مرضی سے کچھ ہوگا تو وہ گڈ لک فار دا اکارڈنگ ٹو قسمت جو قسمت میں لکھا وہ ہوگا بٹ جو تمہاری چوائس سے ہوگا وہ تمہاری غلطی ہے. دس از پیپل اور دس از دا فیملیز اینڈ دس از آر سوسائٹی ٹریٹنگ females and this is the reality. We are living in 2026 but still if we talking about a female ladies a woman who is just think they don't do anything they just born to do like house jobs like بھائی گھر کے کام کرو فیملی سنبھالو بچوں کو سنبھالو کھانا بناؤ یہ کرو وہ کرو. اگر ایک لڑکی ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہے بٹ اسٹل اس کو گھر کا کام ہی سوٹ کرتا ہے بیکاز وہ لڑکی ہے. اوکے کل اس پہ ایک بات ہو رہی تھی میری کزن آئی ہوئی تھی چاچو کی بیٹی اینڈ شی واز کہ بھائی مطلب نا اسٹیچنگ کے لیے کپڑے مطلب عید آ رہی ہے تو کپڑے اسٹیچ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اچھی بات ہے چلو آتا ہے نا تو میں موم واز لائک کہ ہاں تو لڑکیوں کو آنا چاہیے ایٹ لیسٹ بندہ اپنے کپڑے تو اسٹیچ کر سکتا ہے نا. تو میں نے کہا بھائی میرے لیے درزی مر گئے ہیں مطلب فیوچر میں اگر میں نہیں بھی سیکھوں گی تو کیا ہو گیا میں تو ویسے بھی زیادہ تر جو ہے وہ ریڈی میڈ ہی لیتی ہوں یہ وہ بٹ
आई नो हाउ टू स्टिच, मुझे स्टिचिंग आती है। तो शी वॉज लाइक फिर भी होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरा बंदा सीख ले। मैंने कहा उसके हाथ जो हैं वो दुखते हैं क्या अगर वो मेरे लिए एक कपड़े सिलाई करना सीख लेगा। तो एंड दे वाज लाइक फिर तुम्हारे लिए दर्जी ढूंढ लेते हैं। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो आई एम सेइंग कि भाई मेरे लिए तो मेरा बंदा खाना भी बनाना सीख ले, तो क्या अब आप मेरे लिए शेफ़ ढूंढ लेंगे। आई जस्ट वांट से कि इफ़ आई एम मल्टी टैलेंटेड उसको भी होना चाहिए। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो उसको आनी चाहिए। दिस इज़ द थिंग। एंड आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फीमेल्स के लिए चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। दे हेल्पिंग इन स्टिचिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। बट वी आर स्टिल लिविंग कि लड़कियों को सब आना चाहिए। वाई वी आर नॉट थिंकिंग कि लड़कों को भी सब आना चाहिए। लास्ट थिंग इज दैट लिसन गाइस, लिसन गर्ल्स, अपने राइट के लिए स्टैंड लो, चाहे सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो। इफ़ यू आर राइट, आई एम नॉट सेइंग कि भाई हर गलत हक के लिए या बात के लिए तुम लोग मुंह उठा के मुंह खोल लो, नहीं। इफ़ यू आर राइट एंड यू आर द राइट पॉइंट, आप जो स्टैंड लो। सेकंड, आप अपनी मर्ज़ी से वो शादी कर सकते हो, बट आपको भी चेकआउट करना है कि भाई वो लोग कैसे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा कैसा है। ये नहीं कि मुंह उठा के किसी पे भी दिल आ जाए और भर घर वालों को जलील करने लग जाओ। नॉट लाइक दिस, ओके। दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। हार्ट इज़ जस्ट पंपिंग द ब्लड, नॉट योर इमोशंस। अपनी थिंकिंग देखनी चाहिए। समटाइम आपका दिल जो है वो सही फैसला नहीं लेता, तब आपको दिमाग यूज़ करना चाहिए अगर आपके पास है तो। And this last thing for those parents जो अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए रिश्ता ढूंढने आते हैं, तो प्लीज़ अपने लड़के को भी कुछ ढेर सारी चीज़ें सिखाएं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बहू में हो सारे गुण। तो वो सारे गुण आप अपने लड़कों में भी देखें, अपने बेटों में भी देखें, ताकि हमें भी तो पता चले कि भाई हम जिस घर में जा रहे हैं वो इस काबिल है भी या नहीं, वो हमारे स्टैंडर्ड का है भी या नहीं, वो हमारी सोच के मुताबिक है भी या नहीं। ज़्यादा नहीं सही, एटलीस्ट 50-60% तो मैच कर जाए ना। इतना कर जाएगा तो हमारे लिए गुड है, बाकी हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बट अगर बात सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की है और वो सिर्फ लड़की को करना है, तो हम क्यों करें। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है दो लोग जो है वो एक बात पे जो है वो मान जाते हैं, वो होता है कॉम्प्रोमाइज़। इट मीन एक बंदा एंड बंदी किसी एक पॉइंट पे अगर ओके कर जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड वाइब, दिस इज़ कॉल्ड थिंकिंग मैच एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। घर का काम नहीं आता, इट्स ओके, वो कर लेगी। जो काम उसको नहीं आता, इट्स ओके, तुम कर लो। दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़। दैट डजंट मीन कि भाई औरत ही करे। तो काइंडली लेडीज़, थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू आर सो गुड पर्सनालिटी। अल्लाह ताला ने आपको भी जो है वो बनाया अशरफुल मखलूक़ात। इट्स नॉट जस्ट मेल जो अशरफुल मखलूक़ात हैं। तो अगर आप जो है अपनी लाइफ में अपने राइट के लिए स्टैंड नहीं लेते, तो कोई भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। बट द थिंग इज़ यू शुड हैव टू बी राइट। अगर आप ठीक हो, अगर आप सही हो, अगर आप हक पे हो, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। बस आज के लिए इतना ही। कल की बात में एक मज़े की स्टोरी सुनाऊंगी, सोशल मीडिया का एक सच्चा प्यार एंड द रियलिटी ऑफ मैरिज आफ्टर लविंग अ पर्सन who meet you over this social media. So see you tomorrow. Bye bye. Allah Hafiz.